Police say they have a new lead in their hunt for a notorious paedophile and killer who terrorised Melbourne in the late 80s and early 90s. They've never found the man they call Mr Cruel, who's believed to have murdered 13-year-old Carmen Chan and attacked at least 3 other schoolgirls. But now, after an exhaustive investigation, police say they have several new suspects. Kerry Ritchie reports. It's the saddest of school photos. In 1991, Carmen Chan was abducted from her home in the Melbourne suburb of Templestowe. The 13-year-old's body was found a year later. She'd been shot 3 times in the head. Carmen Chan's killer was dubbed Mr Cruel by a journalist, and it stuck, but he was never caught. हेलो गाइस, I'm SRP and welcome back to another case study with me. Dude, आज weather इतना ज़्यादा ठंडा है ना यार, बरसात में जब वो कीड़ा नहीं आता है, I think you can hear that thing. Yeah, you can hear that thing, I'm pretty sure. Also, I don't know why, but recently ना मेरे को लड़कों से बहुत सारे compliments आ रहे हैं YouTube comment section में. I mean, it is nice, but it is very new to me. ज़्यादा time पे I get trolled by guys, so it's very nice to see a leaf turn. Yeah, it's very wholesome. Also, disclaimer before this video starts. This case is very disturbing. Maybe some people they cannot hear about this case and I totally understand that thing. This case includes the discussion of rape, abduction and few more unspecific physical abuse. And please video शुरू करने से पहले पहला pinned comment check कर लेना. I have to mute some words वरना मैं video upload नहीं कर पाऊंगा YouTube पे. So pinned comment check कर लेना just to see what I'm trying to say. Thanks for understanding. तुम लोगों ने कभी ऐसा फील करा है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है एंड बहुत ज़्यादा टाइम से तुम पे नज़र रख रहा है? ऑब्वियसली कभी ना कभी रास्ते पे चलते हुए भी तुम्हें ये फील हुआ ही होगा. पर आज हम जिस केस की बात कर रहे हैं, ही वुड नॉट स्टॉप एट जस्ट स्टॉकिंग पीपल. मिस्टर क्रूअल एक फैमिली को कई महीनों तक स्टॉक करता था एंड फिर उनके घर में घुस के छोटी लड़कियों को उठाकर ले जाता था. इन बच्चों को सेक्सुअली असॉल्ट करने के बाद वो उन्हें स्ट्रीट्स पर छोड़ देता था एंड ही यूज्ड टू लीव दिस किड्स बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ. बट द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस केस इज कि आज तक भी nobody knows who was Mr. Cruel. This unidentified killer and this child kidnapper, he might still be out there today doing the same thing to other kids. So yeah, let's learn a little more about today's case revolving around this monster, Mr. Cruel. ऑस्ट्रेलिया 1980. As I said in the beginning of this video कि हमें मिस्टर क्रूल के बारे में बहुत कम पता है. So I will have to discuss this case through the victims. जितने भी abductions हुए थे, जितनी भी रॉबरी हुई थी, just so that you can understand hopefully कि इस किडनैपर के दिमाग में क्या क्या चलता था, वो कैसे सोचता था, how did he used to do specific things. पर जितने भी सेगमेंट्स की मैं बात करूंगा, they're all leading up to Mr. Cruel's last victim, Carmen Chan. एंड एक ऐसा पोटेंशियल क्लू जिससे शायद 40 साल बाद हमें पता चल सकता है कि मिस्टर क्रूल आखिर कौन था. सो इन 1980s, the only thing that parents feared was a description of a man. ये डिस्क्रिप्शन कि एक लंबा ब्लू ओवरऑल एंड ब्लैक स्की मास्क में चलने वाला आदमी जो कि एक नाइफ हमेशा अपने साथ रखता था. ये आदमी कभी भी किसी के घर में भी घुस सकता है. ऑस्ट्रेलिया वैसे तो अपनी वाइल्ड लाइफ, रास्ते में मकड़ी और उल्टे टॉयलेट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है एंड क्राइम्स कहाँ नहीं होते, सो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में भी होंगे. पर मिस्टर क्रूल जैसा क्राइम कभी भी कहीं नहीं हुआ था. एक ऐसा किलर जो अपना कुछ भी फुटप्रिंट नहीं छोड़ता था, एक ऐसा किलर who was never traced back. मिस्टर क्रूल्स के जितने भी पब्लिक क्राइम थे वो सारे के सारे 80s एंड 90s में हुए थे एंड ज़्यादातर टाइम वो बहुत ज़्यादा यंग लड़कियों को और उनकी फैमिलीज को अटैक करता था. एंड इन सब में से जो फर्स्ट रिपोर्टेड अटैक हुआ था दैट वाज इन 22 अगस्त 1987 इन मेलबर्न. लोअर प्लेंटी सबर्ब एरिया वाज जेन्युइनली अ नाइस प्लेस टू लिव इन. लोग अपना दिन भर बस मेहनत का काम करते थे एंड जितनी भी फैमिली उस एरिया में मूव इन हुई थी दे डिड इट बिकॉज ऑफ द किड्स, बिकॉज एवरीबडी न्यू दैट मेलबर्न वाज द सेफेस्ट प्लेस फॉर किड्स टू ग्रो अप. पर लोअर प्लेंटी मेलबर्न की जो ये इमेज थी इसमें बहुत जल्दी दरार आने वाली थी. आई एम सो सॉरी गाइस, आई साउंड लाइक अ रिपोर्टर देयर, बट दैट इज द करेक्ट वे टू से इट. अराउंड 4 AM इन मॉर्निंग इस एरिया में जब सब लोग सो रहे थे तब एक मास्क्ड आदमी एक फैमिली के घर में घुसने का ट्राई करा था. उसने इस फैमिली के राइट साइड की विंडो खोली विच डायरेक्टली लेड हिम टू लिविंग रूम. उसके पास एक हाथ में गन थी और दूसरे हैंड में ही हैड अ नाइफ एंड गन को वो अपने हाथ में रखते हुए सबसे पहले पेरेंट्स के रूम में गया. उसने ये देखा कि उस कमरे में 2 लोग सो रहे थे तो उसने गन का नोजल सीधा हस्बैंड के सर में रखा और उससे ये कहा कि ज्यादा चिल्लाना मत, ज्यादा आवाज मत करना,
मैं यहाँ पे सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारी कुछ वैल्यूएबल चीजें चुराने आया हूं। अगर तुम लोग कुछ नहीं करोगे तो मैं यहाँ से चुपचाप पैसे लेके चले जाऊंगा। वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर गए थे, दैट्स व्हाई दे एग्रीड टू हिम। एंड फिर इस चोर ने उन दोनों को अपने स्टमक पे रोल करने के लिए कहा एंड वो उनके हाथ पैर एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक वे में बांधने लगा। जिस तरह से उसने नॉट बांधी थी उनके हाथ में ना, वो एक सेलर्स या फिर जो भी लोग डॉक पे काम करते हैं वो लोग यूज करते थे। एंड ये नॉट बांधने का सामान भी वो अपने साथ खुद ही लेकर आया था। एक्चुअली वो अपने साथ सर्जिकल टेप भी लेकर आया था, जिसकी मदद से उसने पेरेंट्स को ब्लाइंडफोल्ड कर दिया था। उसने थोड़ा टेप लिया, उस टेप का ऐसे बॉल बनाया एंड दोनों के मुंह में डाल दिया, सो दैट दे वोंट बी एबल टू शाउट और दे वोंट बी एबल टू मेक एनी काइंड ऑफ नॉइज। उसके बाद और भी ज्यादा सिक्योर होने के लिए उसने दोनों पेरेंट्स को वार्डरोब के अंदर घुसा दिया एंड बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया। एंड फिर उसकी नजर बच्चों पर थी। पेरेंट्स के रूम के अक्रॉस उनके 6 साल के बेटे का रूम था एंड उस बच्चे के साथ भी इस मास्क पहने रॉबर ने सेम ही चीज करी। रॉबर ने उस बच्चे के पैर और मुंह टेप से बांध दिए थे एंड थोड़ा टाइम बाद उसने इस छोटे बच्चे को बेड से बांध दिया था। एंड एट द एंड उसने इस फैमिली के सबसे छोटे मेंबर के कमरे में जाने की सोची। दिस वाज द रूम ऑफ देयर 11-year डॉटर एंड एट दिस पॉइंट इट वाज क्लियर कि इस रॉबर के इंटेंशंस को सही नहीं थे। उसने इस 11 साल की बच्चे को उसके बेड से उठाया और उसके बाथरूम फ्लोर पे जाके रख दिया। उसने उसके हाथ टाइट से पकड़े एंड शी वाज ट्राइंग टू रन अवे। वो भागना तो चाह रही थी पर स्ट्रेंथ डिफरेंट की वजह से शी कुड नॉट डू एनीथिंग। एंड देन दिस मैन sexually assaulted that girl for 2 straight hours. After a few minutes of struggling in the beginning, that poor child, she lost all the heat. She could not fight back, she could not do anything, and she was just laying there lifeless. And ये monster फिर भी उसको assault करता रहा, but he was in no rush. इन 2 घंटे में वो बीच बीच में ब्रेक भी लेता रहा। कभी वो उठकर पेरेंट्स पे चेकअप करने गया कि कहीं वो भाग तो नहीं गए, एंड कभी वो उठकर किचन में गया। When he was assaulting this child, he went to the kitchen to cook something for himself. So yeah, this guy did not worry about anything. He was just roaming freely in the house. उसको ये भी डर नहीं था कि neighbors देख लेंगे या फिर पुलिस में कॉल कर देंगे। Nothing really scared him, or he was very confident in his plan. After he was done assaulting this 11-year-old child, he went downstairs एंड वो चीजें इकट्ठा करने लगा। उसने ड्रॉर से थोड़ा बहुत पैसे लिए, he took some jewelry, he took some vinyls, एंड उसने एक ब्लू कोट चोरी करा। एंड जाने से पहले उसने इस ही घर से एक फोन कॉल भी करी थी। अब तुम लोग को पता ही है कि 80s के घरों में कैसे फोन दिखते थे उस टाइम पे। देयर वर सम फोन जिनमें फिजिकल बटन थे, बट मोस्ट ऑफ दीज पीपल दे वर यूजिंग दोज सर्कल वाला फोन, जिसमें से घुमा के एंड में जाके की आवाज नहीं आती है वो वाले फोन। जब वो इस फोन पे नंबर डायल कर रहा था, उस छोटी बच्ची ने एंड उसके भाई ने उस नंबर डायल होते हुए को सुन लिया था। एंड देन दिस रॉबर कॉल्ड समवन नेम्ड बोजो। इस बोजो आदमी को कॉल करके वो उससे ये कहने लगा कि अब तुम अपने बच्चे छुपा लो। अगर तुम अपने बच्चे नहीं छुपाओगे तो उनके साथ भी मैं वो ही हाल करूंगा जैसा मैंने इस फैमिली के साथ करा है। एंड देन ही लेफ्ट फ्रॉम द सेम विंडो दैट ही केम इन। पुलिस वर कॉल्ड आफ्टर अ व्हाइल एंड जब उन्होंने घर में छानबीन करी, जब उन्होंने फोन रिकॉर्ड चेक करे, तब उन्हें ये पता लगा कि इस घर से तो कभी कॉल हुई ही नहीं थी। जब ये रॉबर घर के अंदर आया था उससे पहले उसने फोन की वायर काट दी थी। They thought that this girl was lying or like she had a delusion. इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा पेन में होने की वजह से मे बी उसने कुछ हेलुसिनेट करा होगा ये चीज। पर उस बच्ची ने और उसके भाई ने ये कन्वर्सेशन होते हुए पक्का सुना था। So maybe this robber was trying to fake a phone call. और मे बी उसने जानबूझ के करा ताकि बच्चे ये कन्वर्सेशन सुन ले एंड इस चीज के बारे में पुलिस को बताए, which in turn will confuse the police and give him time to run. He just wanted to throw them off and misdirect them. And same goes for the things that he stole from the house. He knew कि जब पुलिस घर की तलाशी लेगी तो वो चोरी हुए सामान को क्राइम से लिंक करने का ट्राई करेगी, सो दैट पुलिस कैन फॉर्म एन ओपिनियन एंड पुलिस को इस रॉबर का एक मोटिव पता चलेगा, राइट। पर ये सारी चीजें जो इस रॉबर ने करी, दे वर लीडिंग टू अ डिफरेंट स्टोरी। आई मीन ही स्टोल अ वाइनर फॉर गॉड्स सेक। इट डज नॉट इवन टाई अप विद व्हाट ही डिड टू दैट पुअर किड। सो एवरीथिंग दैट ही डिड, इट वाज वेरी इंटेंशनल एंड इट वाज वेरी थॉट। एंड जो मैंने अभी स्टेटमेंट बोली ना, दैट इज द बेस्ट वे टू डिस्क्राइब मिस्टर क्रूअल। ही वाज अ वेरी केयरफुल थॉट आउट पर्सन। बेसिकली वो हर एक कदम फूक फूक कर रखता था। जिस भी फैमिली पे वो अटैक करता था वो उन्हें हफ्तों एंड कभी कभी तो महीनों तक स्टॉक करता था, टू गेट टू नो एंड टू लर्न देयर पैटर्न्स। एंड ये सब सीखने के बाद वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता था। ये सेम चीजें तुम्हें आगे वाली फैमिली के साथ भी दिखेंगी कि मिस्टर क्रूअल वो बहुत सारी रेड हेयरिंग छोड़ता था ताकि पुलिस ना कंफ्यूज होए एंड उनका ज्यादातर टाइम इन चीजों को सॉल्व करने में लग जाए। बट आफ्टर दिस रॉबरी एंड आफ्टर दिस असॉल्ट ही डिड नॉट एक्ट फॉर अनदर ईयर एंड एवरीथिंग अबाउट दिस रॉबर काइंड ऑफ डाइड डाउन, but not for long. Mr. Krul यहाँ पे नहीं रुकने वाला था, and from the second time he started to abduct kids. क्रिसमस के कुछ दिन बाद on 27 दिसंबर 1988 इन रिंगवुड, जो कि 20 किलोमीटर दूर था लास्ट अटैक से, जॉन विल्स एंड उनकी वाइफ जूली विल्स सुबह के 5 बजे बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। उनके साथ घर में उनकी 4 बेटियां भी थी, बट दे वर स्लीपिंग इन बंक बेड्स इन अ सेपरेट रूम
from their parents. And same last time की तरह इस बार भी मिस्टर क्रूल ब्लू ओवरऑल्स एंड डार्क स्की मास्क पहनकर विल्स के घर में घुस गया था। वो पीछे के दरवाजे से घर में घुसा एंड जॉन विल्स के कमरे में जाकर उसने सेम पिछली बार की तरह जॉन विल्स के सर पे गन रखी। जॉन woke up feeling something cold on his forehead but he could not move. एंड जब जूली ने अपनी आंख खोली तो उसने देखा कि जॉन कांप रहा। She was still half asleep, so she could only see a hand pointing a gun at her husband. एंड जब वो थोड़ा सा नींद से उठी तब अचानक से ये सीन देखकर वो डर गई थी। उसके दिमाग में जो पहला थॉट आया वो ये था कि मुझे अपने बच्चों को बचाना है। So Julie she started to crawl back from her bed. एंड वो ये चिल्लाने लग गई कि बच्चों तुम लोग यहाँ से भागो and call the police. और फिर मिस्टर क्रूल ने गन जॉन से जूली की तरफ मूव करी and he told her to shut up or he will put her down. जॉन ये सब कुछ देख रहा था and he was about to make a move. एंड जब मिस्टर क्रूल ने ये नोटिस करा तो उसने गन वापस जॉन की साइड में करते हुए कहा कि Are you gonna be a hero? Are you gonna save your family? And are you gonna be a hero? To which John replied, No. And फिर से लास्ट इंसिडेंट की तरह Mr. Krul asked John and Julie to roll on their stomach and then he tied and gagged both of them with copper wire and surgical tape. उसने जॉन से दोबारा से लास्ट टाइम की तरह ये झूठ बोला कि I just want your money. एंड ये सुनने के बाद जॉन ने अपनी टेबल की तरफ इशारा करा जहाँ पे उसने $35 रखे हुए थे। After taking that money, Mr. Krul blindfolded both of them. एंड फिर वो उस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ जॉन एंड जूली की 4 बेटियां सो रही थी। 5-year-old Annette, 8-year-old twins Robert and Linda एंड 10-year-old शैरन। शैरन अपने स्कूल के क्वायर में थी और इस हादसे से कुछ दिन पहले वो टीवी पर भी आई थी। एक बार शैरन का फोटो पेपर में भी आया था क्योंकि शैरन की मॉम जूली ने उसे एक दिन बेड में जलने से बचाया था। There was a house fire in their house and शैरन की मॉम ने एक ब्लैंकेट से उस आग को बुझाया था। Her family described her as a very loving and a very quiet girl who was always there to help other people. जब मिस्टर क्रूल इस घर में घुसा था तो उसे इस घर का लेआउट नहीं पता था, पर जब वो लड़कियों के रूम में जा रहा था while he was walking towards kids room he called Sharon by her name. तो घर में घुसने से पहले मिस्टर क्रूल को पता था कि शैरन कौन है। या तो उसने शैरन को टीवी पर देखा था या फिर उसने शैरन को न्यूज़पेपर में देखा था। But he knew her by name and he knew that she was 10-year-old living with her parents and 3 other siblings in that house. So as Mr. Krul was approaching their room, he was calling out for Sharon. And इस पॉइंट पे शैरन अपनी माँ के चिल्लाने की वजह से एंड मिस्टर क्रूल के बार बार उसका नाम बोलने की वजह से उठ गई थी। एंड जैसे ही मिस्टर क्रूल उस कमरे में आया उसने शैरन को पकड़ा, उसके हाथ पैर बांधे एंड उसे वहां से लेकर नीचे चले गए। मिस्टर क्रूल के वहां से निकलने के 10-15 मिनट बाद जॉन ने फाइनली वायर्स को काट दिया था एंड जूली के हाथ खोलने के बाद वो सीधा अपने बच्चों के कमरे में गए। पर जब वो दोनों वहां पहुंचे तो उन्होंने ये देखा कि शैरन उस रूम में नहीं थी। जूली वॉज ट्राइंग टू कॉल द पुलिस बट सेम लास्ट टाइम के हाउस की तरह उनके घर की टेलीफोन वायर्स भी काट दी गई थी। But the weird thing was that this time Mr. Krul he did not take any items from the home. John was scared, he was nervous, but he collected his thoughts. वो अपने घर से बाहर नेबर्स के पास भागा एंड उनसे ये पूछने लगा कि क्या किसी ने कुछ देखा है, क्या किसी ने एक मास्क पहने हुए आदमी को देखा था या फिर क्या किसी ने शैरन को देखा था। He was going through each and every house shouting and running, right? And इस टाइम पे जूली ने एक नेबर के घर से she went to a neighbor's house and she called police from there. जब पुलिस जॉन के घर पर आई तो उन्होंने वो पूरा एरिया सीज कर दिया था। And a search party was also called to find anything or to find Sharon. They called helicopters. There were 2 search parties. And इन search parties को छोड़कर भी रिंगवुड एरिया में जितने भी घर थे हर एक घर में जाकर पुलिस ने इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की। They went to every outpost, they went to every shop ताकि उन्हें कुछ तो इन्फो मिले। रिंगवुड में पुलिस ने 2 sewers भी चेक करे and they also searched 2 abandoned underground factories, पर उन्हें फिर भी वहाँ कुछ नहीं मिला। They were trying their best, पर शैरन कहीं भी मिल नहीं रही थी। फिर पुलिस को ये लगा कि मे बी शैरन को रैंसम के लिए ले जाया गया है because Mr. Krul he did not take any money this time. Actually, he did not take anything from the house this time. Unlike the last house, he did not even stick in the house for too long. He just took Sharon and he went away. But this was also a red herring to throw away police attention and just to waste their time. John and Julie, they were starting to lose hope. उनके दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे थे कि क्या हम अपनी बेटी को दोबारा देख पाएंगे, हमारी बेटी इस टाइम पे कैसी होगी एंड इस आदमी ने हमारी बेटी के साथ क्या करा होगा। शैरन के गायब होने के 18 घंटे बाद ऑर्चर्ड रोड के पास जो कि रिंगवुड से 7 किलोमीटर की दूरी पर है एक लेडी को दूर से एक गार्बेज बैग स्ट्रीट के साइड पे दिखता है। लाइट वाज रिफ्लेक्टिंग ऑफ ऑफ दिस गार्बेज बैग एंड जैसे जैसे वो लेडी इस गार्बेज बैग के पास जाते गई उन्हें ये दिखा इट वाज अ चाइल्ड रैप्ड इन अ गार्बेज बैग। उन्होंने जल्द से ही पुलिस को कॉल करा एंड दे रीच्ड देयर एज सून एज दे कुड टू गेट शैरन। पुलिस टुक शैरन टू हॉस्पिटल बट दे वर वेरी हेजिटेंट टू आस्क हर एनीथिंग क्योंकि शैरन 10 साल की एक छोटी बच्ची थी, राइट? सो दे डिड नॉट वांट टू आस्क कि एक ग्रोन एस मैन ने तुम्हारे साथ क्या करा है। बेसिकली वो ये नहीं पूछना चाह रहे थे
थे कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ क्या क्या करा, कहाँ पे तुम्हें छुआ रहा है. बट शैरन, शी वाज रियली स्ट्रॉन्ग एंड शी वाज रियली कोऑपरेटिव. इतना सब कुछ होने के बाद आई एम श्योर दैट सम पार्ट ऑफ हर वाज मेस्ड अप, राइट, बट शी वाज विलिंग टू हेल्प आउट पुलिस एंड शी वाज विलिंग टू आंसर एनीथिंग. क्योंकि घर से अबडक्ट होने से स्ट्रीट पे वापस छोड़ने तक शैरन की आंखों पे पट्टी बंधी थी. बिकॉज ऑफ दैट शी कुड नॉट डिस्क्राइब परफेक्टली दैट हाउ दैट मैन लुक. पर शैरन ने पुलिस को यह बताया कि स्ट्रीट्स में छोड़ने से पहले मिस्टर क्रूल ने उसे ढंग से एक बात दिया था. उसने शैरन को एक प्रॉपर बात दिया था, उसे ब्रश कराया था एंड उसके नेल्स भी काटे थे. शी ऑल्सो टोल्ड पुलिस कि उसने कभी भी मिस्टर क्रूल का फेस नहीं देखा था. बट वाइल ही वॉज असॉल्टिंग हर ही सीम्ड वेरी जेंटल. वो शैरन से बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता था, उसका ध्यान रखता था एंड उसने शैरन को लेमनेड एंड एक सैंडविच भी बना के खिलाया था. यस, ही डिड असॉल्ट हर, बट अकॉर्डिंग टू शैरन he was very gentle, he was very sweet, right, which was completely opposite of what police thought like कि कैसा मिस्टर क्रूल होगा. Obviously वो इतना एक सीरियस और एक इतना हॉरिफिक क्राइम करा था. एंड मैंने जो तुम्हें अभी तक बताया मिस्टर क्रूल के बारे में, उसके सुनने के बाद तुम्हारे दिमाग में जो उसका डिस्क्रिप्शन था, राइट, आई एम श्योर दैट इमेज did not match Sharon का डिस्क्रिप्शन. Even though Sharon never saw Mr. Cruel's face, उसने बीच में एक बार अपनी आँख की पट्टी खोलने की कोशिश करी थी, just to see that where she was, and Sharon ने पुलिस को मिस्टर क्रूल के बेडरूम का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया. जिस बेड पर वो लेटी हुई थी उसके आगे एक कैमरा लगा था which was pointing towards the bed, which includes that for sure he was filming everything that he was doing to this kid. It was just like any other apartment that she has seen before. बस 3 चीजें वहाँ अजीब सी थी. सबसे पहले तो कैमरे के पीछे एक रैक था जिसके ऊपर मिस्टर क्रूल ने एक ब्लैक ब्लैंकेट डाला हुआ था. Then on her right side there was a peach colored curtain. इसका मतलब obviously उसके पीछे एक विंडो भी होगी. But she never heard a car pass by or any honking or anything related to traffic, even though she was very certain that there was a driveway on the right side of that house. And the third thing was radio. पूरे 18 घंटे जब वो मिस्टर क्रूल के साथ थी, उस पूरे टाइम पे मिस्टर क्रूल ने रेडियो ऑन रखा था. He was trying to drown down the voice of this kid, बट बीच बीच में शैरन ने कभी कभी ना प्लेन की आवाज़ सुनी थी. उसने पुलिस को ये बताया कि इन 18 घंटों में she heard 3 planes take off. जैसा मैंने ये बोला कि शैरन को स्ट्रीट में छोड़ने से पहले मिस्टर क्रूल was very careful. उसने उसे ढंग से नहलाया, उसके ढंग से बाल ब्रश करे, उसके टीथ साफ करे, उसके नाखून साफ करे. He didn't want anything or like any DNA clue which could lead back to him, which could mean this thing that मिस्टर क्रूल को फॉरेंसिक रिपोर्ट्स कैसे जांची जाती है या फिर फॉरेंसिक और पुलिस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ढंग से पता था. मे बी ही यूज्ड टू वर्क इन दिस फील्ड, विच अगेन डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज ही वॉज यूजिंग अ नॉट विच वॉज यूज बाय सेलर्स. शैरन को नहलाने के बाद उसने एक गार्बेज बैग उसकी बॉडी पर डाला, दूसरा गार्बेज बैग उसने उसके सर पर डाला एंड उन दोनों को एक साथ टेप कर दिया था. देन ही पुट अ शर्ट ओवर दैट गार्बेज बैग. देन ही टुक हर एंड लेफ्ट हर नियर बेज वाटर हाई स्कूल वेयर शी वाज फाउंड. शैरन के मिलने के बाद जॉन विल्स न्यूज़ में भी आया था, जहां उन्होंने बेसिकली अपने दोस्तों को, पुलिस को थैंक यू बोला, जस्ट टू अप्रिशिएट एंड टू फाइंड हिज डॉटर एंड ब्रिंग हर होम सेफ एंड साउंड. Mr. Wills was grateful to all who assisted in the search for his daughter. I'd just like to thank all my friends, my neighbours, my relatives. I'd like to thank the media for your coverage and your assistance to get my daughter back. And most of all, I'd like to thank a lovely lady who buys water. Thank you. Even though John was making people aware and he was thanking police, right? क्या सच में पुलिस ने शैरन को ढूंढा था? Or did Mr. Cruel just let her go because he was done with her? See, after Sharon returned, right, the whole family was in distress, obviously. पर जॉन को इसका सबसे बड़ा सदमा पड़ा. पुलिस ने बहुत ही जल्द इस इंसिडेंट को पिछले वाले इंसिडेंट से लिंक कर दिया था and now they wanted leads. On 2nd January 1989, विक्टोरियन गवर्नमेंट ने $100,000 का प्राइस अनाउंस करा था. वो $100,000 देने के लिए तैयार थे in 1989 to anyone who would bring any solid information about Mr. Cruel. And इस प्राइस को अनाउंस करने के बाद उन्हें बहुत सारे कॉल्स भी आए, but none of them led to anything. And 2 साल के लिए सब कुछ फिर से वापस शांत सा हो गया था. When everyone starting to forget and move on from Mr. Cruel, he came back to traumatize another child. But this was the first time that Mr. Cruel left a clue. July 3rd, 1990, Canterbury. Canterbury रिंगवुड से 23 किलोमीटर की दूरी पर था. I don't know why I cannot say that word Canterbury.
कैंटबरी। एनीवेज कैंटबरी रिंगवुड से 23 किलोमीटर की दूरी पे था एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन थोड़ा टाइम बाद यूज में आएगी। एंड कैंटबरी में लाइनस फैमिली रहती थी। दे वर अ रिच इंग्लिश फैमिली जो कि घर रेंट कर रहे थे उस टाइम पर एट मोनोमेथ एवेन्यू। एंड ये जो एरिया है जहाँ लाइनस की फैमिली रह रही थी, दिस वाज कॉमनली यूज्ड बाय द पीपल हु वर पब्लिक फिगर्स और द ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस। क्योंकि ऑस्ट्रेलियन पॉलिटिशियंस रहते थे इस एरिया में, तो तुम लोग सोच सकते हो कि सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी वहाँ किस टाइप की होगी। एंड इसी वजह से लाइनस फैमिली दे रेंटेड अ हाउस देयर बिकॉज दे थॉट दैट दिस विल बी अ वेरी सेफ प्लेस फॉर किड्स और सो दैट्स व्हाट दे बिलीव्ड इन। ब्रायन लाइनस उस समय प्राइस वाटर हाउस में अकाउंटिंग का काम करता था। ही वॉज गोना डू दिस जॉब फॉर अ वाइल बट ही वॉज नॉट गोना स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। सो ही थॉट दैट व्हाई डोंट वी गेट अ सिक्योर्ड प्लेस जहाँ मेरे बच्चे एंड मैं एक साथ रह सकें। ब्रायन एंड रोजमेरी लाइनस दोनों 1990 में ऑस्ट्रेलिया छोड़ने ही वाले थे। लाइनस वाज डन विद हिज वर्क एंड उन लोगों ने पैकिंग भी कर दी थी वापस जाने के लिए। एंड जब उनके इंग्लैंड जाने का टाइम वापस आ रहा था तो उनके फ्रेंड्स सोचा कि क्यों ना हम इन्हें एक फेयरवेल पार्टी देते हैं। सो उस दिन लाइनस एंड रोजमेरी अपने घर से 9 बजे के आसपास निकल गए थे, पर उनकी दोनों बेटियां घर में ही थी, 15-year-old फियोना एंड 13-year-old निकोला। पेरेंट्स के जाने के बाद फियोना एंड निकोला करीब 11:30 बजे सो गए थे। तभी अचानक एक मास्क मैन जिसके पास एक हैंडगन और एक चाकू था घर के पीछे वाली खिड़की से घर में घुस गया था। एंड फिर घर में छानबीन करने के बाद वो बच्चों के रूम में गया एंड फिर वो उन दोनों लड़कियों को गन दिखाकर धमकाने लगा। उसने निकोला और फियोना को ये कहा दैट इफ यू डोंट कोऑपरेट यू विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। उसके बाद 15 साल की फियोना के हाथ पैर बांधकर उसने अपने डैड को ये मैसेज देने के लिए कहा that I want $25,000. Then he took Nicola to a different room, जहाँ ले जाकर उसने निकोला से ये कहा कि तुम अपनी स्कूल यूनिफॉर्म एंड एक अंडरवेयर मुझे दो। एंड ये दोनों चीजें लेने के बाद उसने उसे अपने एक बैग में रख दिया। आफ्टर दैट ही टुक निकोला डाउनस्टेयर्स एंड फिर उसने ब्रायन की ब्लू सेडान की चाबी चुराई। उसने निकोला को बैक सीट में फोर्स करा एंड देन ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। द सैड पार्ट अबाउट दिस इंसिडेंट वाज that they were about to leave Australia. And even sadder thing from that is that Nicola का बर्थडे कुछ दिन में ही था। She was gonna have her 14th birthday in just 3 days. जब ब्रायन एंड रोजमेरी घर वापस आए तो उन्होंने ये देखा क्योंकि गाड़ी गराज के आगे पार्क नहीं है। ब्रायन ran into the house and उसने ये देखा कि फियोना was tied up and laying on her bed and Nicola was missing. उसने फियोना का नोट खोला and then she told him about the ransom. Fiona told her dad that this guy wanted $25,000. पर अजीब बात ये थी कि मिस्टर क्रूल ने कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी थी। उसने ऐसा कुछ भी नहीं बताया था कि रैंसम के पैसे कहाँ देने हैं, कैसे देने हैं, किस टाइम पे देने हैं। ब्रायन कॉल्ड पुलिस इमीडिएटली एंड उसने पुलिस को सीधा सीधा ये कह दिया था कि मुझे मेरी बेटी ज्यादा प्यारी है एंड आई एम रेडी टू गिव एनी अमाउंट ऑफ मनी टू दिस रॉबर। ही आल्सो आस्क्ड पुलिस नॉट टू इंटरफेयर विद कॉल्स क्योंकि उसे ये डर था कि मिस्टर क्रूल कहीं पुलिस के बारे में जानने के बाद निकोला को कुछ करना दे। ब्रायन वॉज वेटिंग फॉर द कॉल बट ये रैंसम का कॉल कभी नहीं आया। बहुत वेट करने के बाद ब्रायन ने एक पब्लिक स्टेटमेंट निकाला जिसमें उसने कहा कि आई एम रेडी टू गिव एनी अमाउंट ऑफ रैंसम दैट ही वांट्स। मैं कितना भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आई जस्ट वांट माय डॉटर बैक। ही मेड दिस पब्लिक स्टेटमेंट जस्ट इन होप्स that if Mr. Cruel was having trouble, अगर Mr. Cruel को कुछ प्रॉब्लम हो थी to get in touch with him, he would at least listen to this broadcast or he will at least see this broadcast like printed on a newspaper and then he would approach him and give his Nikki back. Would just very much like to have Nikki back with us, obviously. Can't wait to have her back with us. पुलिस ने obviously इस इंसिडेंट को भी पिछले वाले abductions के साथ लिंक कर दिया था, but this was a very heavy ransom that Mr. Cruel was asking for. पुलिस के दिमाग में ये आया that maybe Mr. Cruel और Brian का कुछ पुराना झगड़ा था, that maybe Mr. Brian, you know, being in this business, that maybe he wronged Mr. Cruel at some times in his past. तो पुलिस ने बहुत ज़्यादा पूछताछ करी and Mr. Brian के सारे पास्ट के रिकॉर्ड्स निकाले, but they did not find anything faulty. On second day, police started to hand out flyers जिसमें निकोला का डिस्क्रिप्शन and Mr. Cruel के फिजिकल अपीयरेंस का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था, which was told by her sister Fiona. और कुछ दिन बाद Mr. Cruel ने खुद से ही निकोला को एक इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन पे छोड़ दिया था जो कि उसके घर से सिर्फ 6 किलोमीटर की दूरी पर था। She was fully dressed and इस बार गार्बेज बैग यूज करने की जगह she was wrapped in a blanket. But just like last time, her eyes were still blindfolded. Mr. Cruel ने गाड़ी से बाहर निकलने के बाद निकोला को ऐसे गोद में उठाया and then he kept her ऐसे धीरे से as her feet touched the ground. And as soon as she could start to feel the cold through her feet, Mr. Cruel वहाँ से गाड़ी लेके चले गया। थोड़ा सा टाइम रुकने के बाद निकोला ने अपनी आँख की पट्टी खोली and she ran to the first house she saw. वो उस घर की तरफ भाग रही थी but she was still looking left and right कि कहीं मिस्टर क्रूल यहाँ भी है तो नहीं। And then उस घर का दरवाजा खटखटाने के बाद she called her parents at 2 in the morning. And again I don't know if Mr. Cruel knew about this thing, but जिस दिन Mr. Cruel ने निकोला को वापस छोड़ा था
It was her 14th birthday. She was gone for 50 hours and when she was found, she was taken directly to the hospital. और वहाँ पहुँचने के बाद ना police they were on a high alert because of the last 2 cases, right? Police took her in and she could not even talk to her parents for 2 hours. उसको बस psychiatrist के through and पुलिस के सवाल जवाब के through जाना पड़ रहा था. And she had to basically live through all this trauma that she faced for the last 50 hours. But Nicole, she was very brave and she wanted to help the police. उसने कहा कि Mr. Krul around 5 फुट 7 इंच के थे. And she was guessing this height. She was comparing this height to hers. Nicole ने कहा कि Mr. Krul के brown बाल थे and he was around a man in his 30s. And he always wore a black mask जिसमें white stitching करी गई थी around his mouth and eyes. Nicole ने बताया कि abduction के बाद मिस्टर क्रूल ने निकोल को 10 मिनट तक गाड़ी में घुमाया, जिसके बाद मिस्टर क्रूल ने उसे दूसरी गाड़ी में रखा एंड उसके ऊपर एक ब्लैक ब्लैंकेट डाल दी एंड उसके बाद ही ड्रोव द कार फॉर अराउंड 40 मिनट्स एंड देन टुक हर टू द हाउस. निकोल को ये नहीं पता था कि उसे कहाँ ले जाया गया था एंड मिस्टर क्रूल ही माइट हैव ट्राइड टू ड्राइव अलाउट सो दैट शी कुड लूज द सेंस ऑफ डायरेक्शन. एंड शैरन की तरह निकोल ने भी बीच में अपना ब्लाइंडफोल्ड खोला जस्ट टू लुक अराउंड कि मिस्टर क्रूल का रूम कैसा है. पर जो डिस्क्रिप्शन निकोल और शैरन दोनों ने दिया था, राइट, पुलिस कुड नॉट आइडेंटिफाई और पुलिस कुड नॉट पिन पॉइंट कि स्पेसिफिकली किस एरिया में ऐसे घर हैं. एंड यस, निकोल और शैरन दोनों का जो घर का डिस्क्रिप्शन था मिस्टर क्रूल के, इट वाज एग्जैक्टली सेम. वापस छोड़ने से पहले जस्ट लाइक शैरन, निकोल को भी मिस्टर क्रूल ने एक बात दिया था. निकोल को भी मिस्टर क्रूल ने नहलाया था, उसके दांत ब्रश करे थे, उसके नाखून काटे थे. बट अनलाइक शैरन, निकोल हैड स्लाइट ब्रूजेस अराउंड हर नेक. मिस्टर क्रूल ने उसे अपने बेड के पास एक नेक ब्रेस में डाल दिया था व्हाइल ही वाज फोर्सिंग हिमसेल्फ ऑन हर, व्हिच इज लाइक आई डोंट नो मैन, ओके, दैट मस्ट हैव बीन वेरी ट्रॉमेटाइजिंग क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, वो भाग भी नहीं सकती थी, वो अपने हाथ भी मूव नहीं कर सकती थी एंड उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा होगा उस टाइम पे व्हाइल दिस गाय वाज असॉल्टिंग. जब निकोल 50 घंटे तक वहां कैद थी, उसने मिस्टर क्रूल को एक आदमी से बात करते हुए सुना था. फोन पर नहीं, घर में ही किसी एक आदमी से उसने उसे बात करते हुए सुना था. He went to another room and he was speaking very loudly, but he did not receive any response back. So पुलिस ने ये डिसाइड करा कि this is also a red herring. He was again trying to distract the police, ये सोचकर कि निकोल ये डिटेल पुलिस को बता देगी and then they will like search. और इस बार पुलिस ने अपना कोई भी वक्त इस चीज पे जाया नहीं करा. निकोल also said that Mr. Krul उसके डैड की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे थे and वो निकोल से उसके डैड के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाह रहा था. It wasn't really clear that what he was trying to do, right? But at least with Nicole, he was trying to get some information. And जब निकोल वहाँ थी, she also heard planes landing there. But with Nicole, Mr. Krul was different. He was 100% sure of his plan. उसको अपने आप पर पूरा विश्वास था कि उसे कभी भी पुलिस पकड़ नहीं पाएगी. जब उसने निकोल को नेक ब्रेस में रखा था, then in one instance he told her that you will be taken to a hospital and they will test you. You will be examined by police and a surgeon. They will be looking for an evidence to link me to you and they won't find anything. बाकी बच्चों के साथ he was very tender, he was very like careful. But with Nicole, he was playing mind games. He was making her feel bad and he also asked her कि क्या तुम्हारे डैड सच में तुम्हारे लिए इतना पैसा देंगे? Do you think that you're worth $25,000? बहुत बुरा लगता है ये पढ़ के, ये सोच के कि in that situation, right? एक तो ये बुढ़ा आदमी अपने आप को इस बच्चे पे फोर्स कर रहा है and then he's making her doubt her parents and like even question herself. Also, did you guys notice that this side of Mr. Krul was completely different to what Sharon had told the police? Sharon के लिए तो वो एकदम शांत, careful, elegant and एक caring बंदा था. But with Nicole, he was totally opposite. जैसे ही मीडिया को ये न्यूज़ मिली कि तीसरे बार एक छोटी बच्चे के साथ सेम चीज हुई है, they started to blast this case on news. So newspaper, टीवी, रेडियो, हर एक जगह पे इस अब्यूजर की बात चल रही थी. एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ना मतलब बाहर के लोग एक बहुत बड़ा क्राउड अपने आप को इस केस से कनेक्ट कर रहा था. पब्लिक को इस अब्यूजर के बारे में पहले से पता तो था क्योंकि उन्होंने इनाम के बारे में सुना था एंड जो भी पुलिस को मिस्टर क्रूल की कोई भी इन्फॉर्मेशन देता उन्हें ये इनाम मिलता. पर अब पहली बार मीडिया ने इस आदमी को एक नाम दे दिया था, मिस्टर क्रूल. एंड इस नाम के साथ वो कहते हैं ना कि खौफ. सो या मिस्टर क्रूल का जो खौफ था वो मेलबर्न एरिया में पेरेंट्स में और बच्चों में ऐसे फैल गया था. उनके दिमाग में इस आदमी को लेकर अपने आप और अपनी फैमिली की सेफ्टी को लेकर ना एक डर सा बैठ गया था. एंड उस टाइम पे कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जा रहा था, कोई भी अपना घर छोड़ के नहीं जा रहा था. एंड मान लो किसी को अगर ग्रोसरी लेने के लिए या फिर किसी भी रीजन से बाहर भी जाना होता था तो वो लोग अपने बच्चे अपने साथ ही ले जाते थे. She doesn't go to babysitters or anything. She's always with us. Now निकोल के इंसिडेंट से पहले मैंने ये कहा था कि दिस वाज द फर्स्ट टाइम that Mr. Krul made a slip up. Well, that is because अब मिस्टर क्रूल का एक पैटर्न हमें सामने नजर आ रहा था जो कि उस टाइम पे पुलिस को समझ तो नहीं आया था, पर जितने भी लोग इसे बाहर से इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जो भी आम जनता इस चीज को बाहर से इन्वेस्टिगेट करी थी, दे कुड सी दिस थिंग. जितने भी रॉबरी या फिर अबडक्शन मिस्टर क्रूल ने करे थे वो एक दूसरे के बहुत पास थे एंड ऑल ऑफ देम वर इन द सेम एरिया
मेलबर्न। तो ये तो कंफर्म हो गया था कि मिस्टर क्रूल या तो मेलबर्न में रहता था, इस एरिया में रहता था, या ही हैड बीन वर्किंग देयर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ऑल्सो पीपल स्टार्टेड टू गेट दिस हंच दैट मिस्टर क्रूल या तो पुलिस में काम करता था or he was a part or like some kind of way involved in a forensic lab. He knew how to dispose of evidence and he also knew कि उसे कैसे बच्चों से कोई भी एविडेंस निकालना है. He knew कि पुलिस कितने टाइम में अलर्ट हो जाती है and he also knew that पुलिस कितने टाइम में एक केस को छोड़ देती है. One thing that Mr. Krul always did was that he always used to return this kid. जब उसका इन बच्चों से मन भर जाता था तो वो हमेशा उन्हें ना कहीं घर के आसपास छोड़ देता था. He was accused of assaulting 6 or more kids at this time. पर उसने कभी भी किसी भी बच्चे को जान से नहीं मारा था. Until he saw Carmen Chan. April 1991, लास्ट अबडक्शन के 9 महीने बाद मिस्टर क्रूल डिसाइडेड टू अटैक येट अनदर यंग चाइल्ड, Carmen Chan. Carmen Chan, she lived in Templestowe with her family, Phyllis and John Chan, and with her 2 younger sisters. Carmen was a very polite, very humble and a very academically blessed child. And Carmen and Nicole दोनों सेम ही स्कूल में जाते थे, which was Presbyterian Ladies College. And that is the reason कि Carmen and Nicole का घर एक दूसरे से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर था. Carmen के पेरेंट्स ने हांगकांग से ऑस्ट्रेलिया मूव करा था for better future of their children. And ऑस्ट्रेलिया आकर उन्होंने 2 चाइनीज रेस्टोरेंट भी खोले थे. Phyllis and John का ज़्यादातर टाइम लाइक एक दिन में 12 से 16 घंटे, राइट. उन दोनों का ज़्यादातर टाइम रेस्टोरेंट में ही बीच जाता था क्योंकि वो लोग अपने तीनों बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते थे. एंड उस टाइम से ही जॉन ने अपनी बेटी कार्मेन की कॉलेज फीस के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिया था. ऑन 13 अप्रैल, जस्ट लाइक एनी अदर डे, फिलिस ने कार्मेन से अपने सिबलिंग्स का ख्याल रखने के लिए कहा क्योंकि उस दिन जॉन को सेकंड रेस्टोरेंट में कुछ काम था. एंड कार्मेन बीइंग द एल्डेस्ट सिस्टर, शी एग्रीड टू टेकिंग केयर ऑफ देम. नाउ चान फैमिली, दे लिव्ड इन टेम्पल्स्टू डिस्ट्रिक्ट इन विक्टोरिया. एंड ये एरिया ना, यू कैन से दैट दिस एरिया वाज वेरी पॉश. एवरी सिंगल हाउस देयर वाज वेरी गुड एंड जो ये नेबरहुड था दैट वाज आल्सो वेरी नाइस. तो जो लोग वहां रहते थे, दे डिड नॉट थिंक अबाउट सिक्योरिटी दैट मच. एंड मिस्टर क्रूल ने इस ही चीज का फायदा उठाया. एज आई सेड बिफोर that he used to stalk a family for months, so he knew कि फिलिस एंड जॉन ज्यादातर टाइम पे घर में नहीं रहते थे. वो उस घर पे बहुत पहले से अटैक कर सकता था, पर फिर भी मिस्टर क्रूल ने ना एक अपॉर्चुनिटी का वेट करा. तो इतना तो क्लियर था कि मिस्टर क्रूल कार्मेन पर बहुत ज्यादा टाइम से नजर रख रहा था. चान फैमिली का जो घर था उसके आसपास बहुत लंबी ब्रिक वॉल्स थी एंड घर में एंटर करने का बस एक ही रास्ता था, दैट वाज द मेन इलेक्ट्रिक गेट. एंड इन दोनों रीजंस की वजह से ही दे नेवर फेल्ट अ रीजन और लाइक दे नेवर फेल्ट अ नीड टू इंस्टॉल सिक्योरिटी इन देयर हाउस, टू इंस्टॉल सिक्योरिटी और लाइक टू कीप अ गार्ड देयर. पर मिस्टर क्रूल को इस डिटेल के बारे में भी पता था. रात को 9 बजे उसने मेन गेट के स्विच के साथ छेड़खानी करी और बिना अलार्म सेट करे वो गेट से अंदर घुस गया. अंदर घुसते ही उसने जॉन की कार राइट हैंड साइड में पार्क देखी एंड एक स्प्रे कैन लेके उसने उसकी कार पर स्प्रे पेंट करना शुरू कर दिया. एंड ही रोट ऑन हिज कार दैट पे बैक, मोर टू कम, एन एशियन ड्रग डीलर. कार स्प्रे पेंट करने के बाद मिस्टर क्रूल मेन डोर से ही अंदर घुसा एज देयर वाज नो साइन ऑफ फोर्स एंट्री. एंड उस टाइम पर कार्मेन एंड उसकी छोटी बहन काली दोनों किचन में ही थे. कार्मेन अपनी बहनों के लिए उस टाइम पे डिनर हीट कर रही थी. दे बोथ वर फेसिंग टुवर्ड द विंडो जब अचानक मिस्टर क्रूल पीछे से उनके सामने आया एंड दे बोथ वर स्टार्टर्ड. काली क्योंकि एज में छोटी थी तो वो मिस्टर क्रूल का गेटअप देखकर ही डर गई थी. ग्रीन ग्रे ट्रैक सूट with a black mask. She was so scared of this getup that she could not even speak. Mr. Krul के एक हाथ में चाकू था और उसने चाकू बच्चों की तरफ करके उन्हें ये कहा कि I just want your money. But as we know that he was again lying to these kids. चाकू से इशारा करने के बाद उसने दोनों को कार्मेन के बेडरूम में मूव कराया जहां उनकी सबसे छोटी बहन कैरन डर के मारे बेड के पीछे छुपी थी. After that he separated Kali and Karen from Carmen एंड उसने उन दोनों को कार्मेन के क्लोजेट के अंदर पुश कर दिया था. एंड उसने कार्मेन का बेड क्लोजेट के आगे लगा दिया था ताकि वो दोनों वहां से ज्यादा भाग ना पाए. एंड दिस होल टाइम कार्मेन वॉज टू स्कैर्ड एंड टू स्टन्ड टू डू एनीथिंग एंड नाइफ के डर से शी वॉज नॉट इवन एबल टू मूव. एंड एट द एंड मिस्टर क्रूल टुक अवे कार्मेन. मिस्टर क्रूल के निकलने के 10 मिनट बाद काली एंड कैरन ने पूरी जान लगाकर उस दरवाजे पे धक्का मारा एंड दे गॉट आउट ऑफ द क्लोजेट. काली इमीडिएटली कॉल्ड हर डैड कि कोई कार्मेन को घर से उठाकर ले गया. एंड जैसे ही जॉन ने ये सुना वो जल्दी से भागकर घर आया. ही स्टार्टेड टू सर्च होल हाउस एंड होल नेबरहुड पर उससे कार्मेन कहीं भी नहीं मिली. जब जॉन ने पुलिस को कॉल करके ये बताया कि कोई उसकी बेटी को उठाकर ले गया है, दे इमीडिएटली न्यू दैट दिस वाज मिस्टर क्रूल ओनली. पुलिस दे डिड नॉट वांट टू लूज मिस्टर क्रूल
क्रूल दिस टाइम, सो वो एकदम से एक्टिव हो गए. दे डिप्लॉयड अ सर्च पार्टी विद अ लॉट ऑफ पुलिस डॉग्स जो कि कारमेन का सेंट फॉलो कर रहे थे. पर कुछ दूर जाने के बाद ये सेंट चले गई थी. पुलिस को जॉन की कार में लिखा मिला, पे बैक एजेंट ड्रग डीलर, more to come. उसका कनेक्शन भी ढूंढना था. But after doing the background check on John and Phyllis, they found nothing. So this was again a false information planned by Mr. Krul. पुलिस कारमेन को ढूंढ रही थी एंड अपने नॉर्मल प्रोटोकॉल फॉलो कर रही थी, पर इस टाइम पे कुछ तो अलग था. सर्च को अब 3 दिन हो चुके थे एंड कारमेन एंड मिस्टर क्रूल का कुछ भी पता नहीं था. मोस्टली पास में जितने भी बच्चे मिस्टर क्रूल ने उठाए थे वो उन्हें एटलीस्ट 3 दिन में वापस तो कर देता था, पर 3 दिन बीतने के बाद भी कारमेन का कोई पता नहीं था. सो ऑन 5th day John posted a letter in newspaper in which he offered to give $300,000 as ransom to Mr. Krul, and this was with the help of police only. Now again I have to mention this thing that this is 1991 and इस time पे $300,000 एक बहुत बड़ी रकम. But John and Phyllis they did not care, they just wanted their daughter back. ये ransom letter की announcement होने की वजह से and Carmen का abduction Mr. Krul से लिंक होने की वजह से this became the biggest manhunt in Australia. पुलिस दिन रात लगी रही पूछताछ करने में, लोकल लोगों से, स्कूल्स में, कैफेटेरियाज में, यहाँ तक कि वो टाउन से बाहर भी गए कि उन्हें एटलीस्ट कोई तो इन्फॉर्मेशन मिले. पर 3 महीने सर्च करने के बाद भी उन्हें कोई लीड नहीं मिली, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली. पहले जॉन और फिलिस के मन में कुछ तो आशा थी कि उनकी बेटी वापस आ जाएगी, पर 3 महीने बीतने के बाद एंड हर जगह से फॉल्स इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ना उनका भी दम थोड़ा सा टूट गया था. जॉन फिर भी कोशिश कर रहा था कि वो हर एक चीज को कामली समझे, बट फिलिस she could not take it anymore and she was emotionally destroyed. Police and Phyllis Chan were hoping that he just had this much amount of human decency and that he would watch that and think, yes, I'll release her. Away with me and very hard to sleep. We couldn't sleep. So we hope that the men understand and release her as soon as possible so we can have a family together. Please, release my daughter! अपने माँ बाप को इतना दुखी देखकर कालियन कैरन ने भी एक ओपन लेटर लिखा था इन होप्स कि वो कारमेन तक पहुंच जाएगा एंड उसे पढ़कर वो वापस आ जाएगी. एज आई मेंशन बिफोर कि शैरन एंड निकोल दोनों ने ये कहा था कि जब वो अबडक्ट हुए थे उन्होंने अपने टाइम पर एयरप्लेन्स की आवाज सुनी थी. तो पुलिस ने मेलबर्न में एयरपोर्ट के पास 30,000 घरों में छानबीन करी एंड वो ये होप कर रहे थे कि शैरन के डिस्क्रिप्शन से मैच होता हुआ कोई घर उन्हें मिल जाए. बट अगेन दे डिड नॉट फाइंड एनीथिंग सिमिलर टू दैट और एनीथिंग दैट कुड लीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन. एट दिस पॉइंट विक्टोरियन पुलिस वाज हेल्पिंग चान विद द रैंसम मनी, राइट? सो दे आल्सो स्टार्टेड अ हंट फॉर मिस्टर क्रूल जिसका नाम था ऑपरेशन स्पेक्ट्रम एंड इसमें लीड इन्वेस्टिगेटर थे डेविड स्पर्ग. डेविड विद हिज टीम tried their hardest for 3 months, but as I said, nothing of value came to light. So David and his team were also heartbroken at the end. And in May, पुलिस ने last time एक road patrol शुरू करा. They went through the whole area for 3 days, पर फिर भी उन्हें कोई भी ऐसी belonging नहीं मिली. कैरन से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज उन्हें नहीं मिली जो कि उन्हें ये बता सके कि कैरन आखिर में है कहाँ. And after this patrol, पुलिस ने ये मान लिया था कि कैरन शी वॉज डेड एट दिस पॉइंट. कैरन के अबडक्शन के करीब 1 साल बाद और 9 अप्रैल 1992 में एक आदमी थॉमस टाउन के पास सुबह अपना कुत्ता घुमा रहा था जो कि चान के घर से 15 किलोमीटर की दूरी पर था. ये जगह ना इलेक्ट्रिसिटी हाउस के थोड़ा सा पास पे थी एंड दिस वाज लाइक काइंड ऑफ अ हिली एरिया. तो नॉर्मली लोग वहां ऐसे टहलने नहीं जाते थे, पर कुछ लोग वहां दे यूज्ड टू डू हाइक्स ओवर देयर. तो जब ये आदमी अपना डॉग लेकर वहां गया था, दैट डॉग ड्रैग्ड हिम टू अ फुल्ली डिकम्पोज्ड बॉडी एंड जब उस आदमी ने पुलिस को बुलाया एंड इस बॉडी पर इन्वेस्टिगेशन करी गई, then it was revealed that this was Carmen Chan. ऑटोप्सी रिपोर्ट से ये पता चल गया था कि कार्मेन चान को उस एरिया में फेंकने से पहले उसके सर पे 3 गोली मार दी थी. एंड ऑटोप्सी से ये भी क्लियर था कि कार्मेन के अबडक्शन के कुछ ही दिन बाद वो मर गई थी. When this news broke on television, right, people of Australia, they could not believe it because everyone was involved and everyone knew about this case, right? They had this like small hope. उन्हें ऐसा होप था कि बाकी बच्चों की तरह क्या पता कार्मेन भी शायद बची होगी. But this autopsy was the final nail on the coffin. बहुत सारी थ्योरीज ऐसी बाहर आ रही थी कि मिस्टर क्रूल ने आखिर इसी बच्ची को क्यों मारा. बाकियों को उसने एटलीस्ट रिटर्न तो करा था, तो उसने कार्मेन को ही क्यों मारा. टू विच कार्मेन्स मॉम फिलिस रिप्लाइड कि कार्मेन एक बहुत ही ज़्यादा स्टबर्न लड़की थी एंड उसने पक्का अपने अटैकर के अगेंस्ट अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई करी होगी. या ये भी हो सकता था कि कार्मेन वॉज द फर्स्ट गर्ल who saw the face of Mr. Krul, जिसकी वजह से अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए मिस्टर क्रूल को उसे मारना ही पड़ा. Even though Carmen Chan's death report was out,
द ऑपरेशन स्पेक्ट्रम डिड नॉट स्टॉप। वो लोग अगले कुछ सालों तक जी जान लगाकर मिस्टर क्रूल को ढूंढते रहे। इस ऑपरेशन में 40 लोग थे, इन्वेस्टिगेटर्स, पुलिस एंड सर्च पार्टीज के मेंबर, जिन्होंने 27,000 पोटेंशियल सस्पेक्ट्स को चेक करा था एंड करीब 30,000 घरों की छानबीन करी थी। पर 3 साल लीड्स के पीछे भागते भागते इन 1994 दिस ऑपरेशन वाज शट डाउन। एंड मेरी इस वीडियो के पब्लिश होने तक आज तक भी मिस्टर क्रूल का कोई पता नहीं है। द ओनली लीड एंड द ओनली factual thing that people know about Mr. Cruel's identity is that he for sure lived in Melbourne area, क्योंकि चारों के चारों abductions उसी एरिया में हुए थे, which is not a coincidence. Well, I'm sure that at this point Mr. Cruel he must be around 40 or 60. पर एक चीज जो मैं बार बार सोचा था इस केस के बारे में पढ़ते हुए भी, राइट, कि क्या कार्मेन चान के बाद मिस्टर क्रूल डिड ही स्टॉप? क्या वो ये सेम चीज बस एक डिफरेंट सिटी में एक डिफरेंट नाम के साथ सेम चीज कर रहा है? क्या वो अभी भी बच्चों को अबडक्ट कर रहा है? आफ्टर कार्मेन्स बॉडी वाज फाउंड, पुलिस लिंक 12 मोर सिमिलर केसेस टू मिस्टर क्रूल, पर उनके पास इस बात का कोई भी एविडेंस या स्टेटमेंट नहीं था that this was done by Mr. Cruel. पहले 3 केसेस में he did abuse these kids, right? पर उसने पहले 3 केसेस में इन बच्चों को वापस कर दिया था। Then why did he kill Carmen Chan? क्या कार्मेन सच में इकलौती एक ऐसी लड़की थी जिसने पहली बार जिंदगी में मिस्टर क्रूल का फेस देखा था? और was she a threat to Mr. Cruel? एंड सबसे बड़ा सवाल मेरे मन में ये है कि अगर मिस्टर क्रूल अभी जिंदा है एंड 50-60 साल की जिंदगी में क्या उसने कभी भी जो इन बच्चों के साथ करा वो चीज क्या उसने कभी भी रिग्रेट करी होगी? These kids will forever be scarred and traumatized for their life, है ना? तो जो भी चीजें मिस्टर क्रूल ने इन बच्चों के साथ करी, did he ever reflect back on it? Well, that's about it for this case and I hope that you learned something while spending your time with me. अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आई then please drop a like and please subscribe to my channel cause I am for sure gonna reach 1 million. Also, I have a Facebook page जहाँ पे मैं horror stories narrate करता हूँ and उसका link मैंने description में दे रखा है. And lastly, please consider joining membership to my channel. That is the best way that you can support me. Well, that's about it guys. Take care of yourself. Keep your loved ones very close to you and I will see you very soon. Bye bye.